السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم ویڈیو کرنے والے کوہستانی کا 1000 years of Turkey Ottoman Empire. Let's watch it. مبارک، کنگریچولیشنز، اس سال ترکی کے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے 1923 میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ٹل دیٹ ٹائم ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی کو آزادی ملی، اور آج اسی دن کو ترکی میں بہت زبردست طریقے سے منایا گیا۔ امیزنگ، رائٹ؟ لیکن ترکی کی آزادی اور باقی کنٹریز کے آزاد ہونے میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ دنیا کے باقی ممالک برٹش، فرانس یا اٹلی سے آزاد ہو کر بنے، لیکن ٹرکی نے آزادی عثمانیہ خلافت سے لی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے ٹرکی کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عثمانیہ خلافت کو ختم کر کے آخری خلیفہ کو تخت سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے صرف ترکی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ایک ایسا نظام جو پچھلے 1300 سال سے چل رہا تھا ختم ہو گیا۔ خلافت۔ سلطان عبد المجید، دنیا کے آخری خلیفہ، اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ٹرکی چھوڑ کر چلے گئے۔ سلطان عبد المجید کے خاندان عثمانیہ اوٹومن خاندان نے ترکی پر 600 سال تک حکومت کی، اور صرف ترکی نہیں، اس خاندان نے 3 کانٹیننٹس پر، اس پورے علاقے پر بھی حکومت کی۔ لیکن یہ علاقہ، دس پیس آف لینڈ جسے آج ہم ٹرکی کے نام سے جانتے ہیں، یہ اصل میں کبھی ٹرکی تھا ہی نہیں، بلکہ ٹرکش لوگ یہاں سے بہت دور اس علاقے سینٹرل ایشیا کے رہنے والے لوگ تھے، جو آج قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان کہلاتے ہیں۔ اور اس علاقے جسے ہم ٹرکی کہتے ہیں، یہاں زیادہ تر گریک اور رومنز رہتے تھے۔ ہسٹری میں کبھی بھی ٹرکش لوگوں کی کوئی امپورٹنس یا حیثیت نہیں تھی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اسلام کے آنے کے بعد ٹرکش لوگوں کی تاریخ بالکل بدل گئی۔ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی خلافت راشدہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی، اور مسلمانوں نے کچھ ہی عرصے میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا۔ لیکن خلافت راشدہ صرف 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، جس کے بعد امیہ خلافت نے پورے مسلمانوں پر حکومت کی اور اس اسلامک امپائر کو کافی حد تک اور بھی بڑھایا۔ لیکن امیہ خلافت میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کی حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے پر تھی، لیکن یہ اپنی امپائر میں صرف عربیوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، جس کی وجہ سے باقی علاقے ان سے اتنا خوش نہیں تھے۔ اور ایونچولی 90 ایئرز بعد ایک نئے خاندان نے ان سے یہ خلافت چھین لی، اور دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت اور امیہ خلافت میں ایک بہت بڑا ڈفرنس یہ تھا کہ عباسی خلافت صرف عربیوں کو نہیں بلکہ عرب سے باہر رہنے والے باقی مسلمانوں کو بھی اپنی حکومت میں امپورٹنٹ پوزیشنز دینے لگے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے بیسٹ لوگ ان کے کیپٹل بغداد میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور یہ سٹی بغداد دنیا کی بیسٹ سٹی بن گئی۔ عباسی خلافت کے اس ٹائم کو اسلام کا گولڈن ایج سمجھا جاتا ہے۔ سائنس، میڈیسن، ٹیکنالوجی اور ایون دنیا کی پہلی فلم انڈسٹری، سٹوری انڈسٹری ٹائپ، جدھر سے دنیا کی سب سے فیمس سٹوریز پیدا ہوئی جنہیں آج تک پوری دنیا جانتی ہے، جیسے کہ الادین، علی بابا، They all know about Alibaba. سنباد، جو آج بھی بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں۔ اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے، تو سبسکرائب۔ آہستہ آہستہ اسلامک امپائر پھیلتی گئی اور سینٹرل ایشیا تک پہنچی، جہاں پہلی بار ٹرکش قبیلوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جس ٹرکش لیڈر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کا نام تھا سلجوق۔ اسی سلجوق کی اولاد میں سے ایک بیٹے طغرل نے آگے جا کر اس پورے علاقے کو فتح کر لیا اور یہاں سلجوق امپائر بنائی۔ لیکن اس سلجوق امپائر کا بادشاہ ہمیشہ سلطان کہلاتا تھا، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ صرف اس عباسی سلطنت کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو ہمیشہ صرف عربی ہی ہوتا تھا۔ سلجوق سلطنت کی طاقت کی وجہ سے ٹرکش قبیلے سینٹرل ایشیا سے نکل کر ہر طرف پھیلنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ سلطنت اناتولیا، جسے آج ٹرکی کہا جاتا ہے، یہاں تک پہنچے، اور رومن امپائر کے ساتھ ایک جنگ میں انہیں بہت بری طرح ہرا دیا، جس کے بعد آج سے 1000 سال پہلے ٹرکش لوگ آہستہ آہستہ اس علاقے ٹرکی میں آباد ہونے لگے۔
सल्जूक सल्तनत के सबसे पावरफुल टर्किश कबीले हमेशा उनके कैपिटल ईरान के बहुत करीब रहते थे, और जो कमजोर कबीले थे वो उनके कैपिटल से बहुत दूर इस एम्पायर के बॉर्डर्स के पास रहते थे। इन्हीं कमजोर कबीलों में से एक कबीले के सरदार का नाम उस्मान था। उस्मान के बारे में तारीख में बहुत कम ऑथेंटिक बातें लिखी, सिर्फ इतना पता है कि उनकी अनातोलिया टर्की में एक बहुत ही छोटे इलाके पर हुकूमत थी, और आगे जाके उस्मान की औलाद ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके को फतह कर लिया। ऑटोमन एम्पायर और बाकी इस्लामिक एम्पायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि बाकी इस्लामिक एम्पायर्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों को छोड़कर वेस्ट यूरोप की तरफ बढ़ने लगी, और पहली दफा मुसलमान यूरोप को फतह करने लगे। और आखिर इसी उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी फतह कर लिया, और ये वो सिटी थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि एक दिन मुसलमान इसे जरूर फतह करेंगे। इस्तांबुल की इस फतह को पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत जोरों शोर से मनाया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अरबियों से ज्यादा ऑटोमन्स को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उस वक्त भी सिर्फ सुल्तान कहलाते थे, खलीफा नहीं। खलीफा तब भी अब्बासी खिलाफत के ही बादशाह को कहा जाता था, जो ऑफ कोर्स अरबी था। लेकिन इस्तांबुल फतह करने के 50 साल बाद एक उस्मानी बादशाह सुल्तान सलीम ने यह सब कुछ बदल दिया, और उसने यूरोप से अपनी अटेंशन हटाकर इजिप्ट में ममलूक सल्तनत पर हमला करके उसे तबाह कर दिया, और सिर्फ एक साल में अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के साइज को डबल कर दिया। मतलब इस सारे इलाके को फतह कर लिया। सुल्तान सलीम उस वक्त के खलीफा मुतवक्किल को अपने साथ वापस इस्तांबुल लेकर आया, और यहां दिस इज वेयर खिलाफत ट्रांसफर हुई। अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने अपनी खिलाफत सुल्तान सलीम के हवाले की, और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और कुछ बाकी चीजें जो आज तक इस्तांबुल में मौजूद है। और इस तरह पहली बार खिलाफत अरबियों से निकलकर एक टर्किश बादशाह के पास आई। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खिलाफत बन गई। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, जिसकी ताकत के सामने दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आज से 500 साल पहले मुसलमान दुनिया में इतने ही ताकतवर थे, तो आज इस हालत तक कैसे पहुंचे जहां हर तरफ बस तबाही है? इसका क्रेडिट भी ऑटोमन एम्पायर को जाता है, क्योंकि अब पूरे दुनिया के मुसलमान ऑटोमन्स को इस्लाम का लीडर मानते थे। लेकिन जैसे ही उस्मानिया सल्तनत अपनी पीक तक पहुंची, वहां से सब कुछ खराब होने लगा। वो यूरोप जिसकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई हैसियत नहीं थी, वहां एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने गलती से इंडिया ढूंढने के चक्कर में अमेरिका को दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से यूरोप के पास इस पूरे इलाके की वेल्थ जमा होना शुरू हुई, और यूरोप आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर से आगे निकलना शुरू हुए। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी बहुत सारी खराबियां पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी बादशाह खलीफा अपनी अवाम से बहुत डिफरेंट दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल सलीम द सेकंड, जिसे उनके ब्लू आइज और ब्लॉन्ड बाल की वजह से जाना जाता था, और उन्हें सलीम द ब्लॉन्ड भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले टर्किश लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोमन बादशाह के लिए जो औरतें सेलेक्ट की जाती थी, उनका ताल्लुक हमेशा यूरोप में यूक्रेन, रोमेनिया, ग्रीस वगैरह से होता था। और ऐसा क्यों होता था? ये ऐसी लड़कियां थी जिनकी ना कोई तरबियत और ना कोई इस्लामिक वैल्यूज होती थी। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से उस्मानिया खलीफा की मलका बन जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं औरतों ने उस्मानी खलीफाओं को भी अपनी ताकत के लिए यूज करना शुरू किया। और कहा जाता है कि इनमें से एक कौसल सुल्तान ने अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए उस्मानी खलीफाओं की जान भी ली, और इन मलकाओं की ये लड़ाइयां 100 साल तक जारी रही, जिसकी वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन स्टिल सबसे बड़ा नुकसान, जिसकी वजह से मुसलमान वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे रह गए। जब उस्मानिया खिलाफत अपनी पीक पर थी, उसी वक्त यूरोप में एक मशीन इजाद हुई, प्रिंटिंग प्रेस। इससे पहले दुनिया में किताबें सिर्फ हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद सारी बुक्स इस मशीन के जरिए बहुत तेजी से प्रिंट होने लगी, जिससे यूरोप में किताबें हर तरफ फैल गई, और इल्म, नॉलेज बहुत तेजी से हर घर तक फैलने लगा।
और यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन जैसे ही ये इन्वेंशन उस्मानिया खिलाफत तक पहुंची, उनके मिनिस्टर्स और उलमा ने इसे हराम कहकर बंद कर दिया और पूरे खिलाफत में मुसलमानों के इस प्रिंटिंग प्रेस को यूज करने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से यूरोप में एजुकेशन और नॉलेज बढ़ने लगी और मुस्लिम दुनिया इनसे बहुत पीछे रह गई। इस फैसले के 200 साल बाद उस्मानिया खिलाफत ने यह पाबंदी हटा दी, लेकिन इट वाज टू लेट। यूरोप मुसलमानों से तरक्की में बहुत आगे निकल चुका था और आज पूरे इस्लामिक दुनिया में बुक्स, इवन कुरान भी प्रिंट होते हैं, विच मीन्स आज पूरे दुनिया के मुसलमान उस्मानिया खिलाफत के इस फैसले को नहीं मानते। इन फैसलों के बाद उस्मानिया खिलाफत का डिक्लाइन शुरू हुआ। आखिर वर्ल्ड वॉर 1 तक उस्मानिया खिलाफत इस इतने बड़े एम्पायर से सिर्फ इतने इलाके तक रह गई और वर्ल्ड वॉर 1 में इनके एलाय जर्मनी के हारने के बाद उस्मानिया खिलाफत भी टूटने लगी और अरबियों ने भी ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत को तोड़ने की फुल कोशिश की, जिसके बाद आखिर 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आखिरी खलीफा को मुल्क से हमेशा के लिए निकाल दिया और अतातुर्क की खिलाफत से इतनी नफरत थी कि खिलाफत खत्म करने के बाद उसने टर्की को बिल्कुल बदलने की कोशिश की और इस्लाम और खिलाफत को टर्की से हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया, जिसमें उसने बहुत ही अजीब किस्म की रिफॉर्म्स की। फॉर एग्जाम्पल, टर्किश हमेशा ऐसे अरबी स्टाइल में लिखी जाती थी, अतातुर्क ने इसे ऐसे यूरोपियन स्टाइल में बदल दिया और हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी और इवन अजान पर भी पाबंदी लगा दी, अरबी अजान पर, जिसके बाद तुर्की के मस्जिदों में 18 साल तक टर्किश जबान में अजान दी जाती थी और ये अजान देते हुए अल्लाह को अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि अल्लाह को टर्किश लफ्ज तंग र कहना जरूरी था। जिसके बाद जो भी इन रिफॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करता था उसे टर्की की फौज कू करके ताकत से हटा देती थी और इस तरह आखिर 1924 में खिलाफत का निजाम दुनिया से खत्म हो गया और आज खिलाफत के इस निजाम को दुनिया से खत्म हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो मुबारक और मे बी नॉट। सब्सक्राइब। क्या हिस्ट्री है यार, ये सब तो हमको पता भी नहीं है इतने तो डिटेल कुछ में। अभी भी आपको नहीं पता सरतुल है। देख रहे हैं हम, लड़तुल गाजी, पर उसमें वो अनातोलिया, उस्मान, अभी ये तक तो सब बहुत- चीज का बहुत नाम time है जिक्र अभी। हुआ है, बट वो पर ये भी एकदम बोलते ना शॉर्टकट में काफी कुछ बता दिया है ऑफ कोर्स इसमें कि कैसे कुछ क्या भी हुआ, नहीं कैसे पता डिस्ट्रॉय था। भी हुई बाद में खिलाफत ऑफ हम्म। कोर्स। तो आखिरी खलीफा का भी पूरा इसमें डिटेल बताया गया है आपको। अभी कितने खलीफा से हम लोग देखेंगे इनके वीडियोस, और काफी नॉलेजेबल वीडियोस है। बहुत, मैं तो एक्चुअली खो गई सब चीजों में। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर सब्सक्राइब, कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।